So today first I am going to discuss some of the questions based on the test paper held on the Sunday. परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं था उसमें, काफ़ी कम आप लोग अटेम्प्ट कर पाए थे. So I'll be discussing some of the questions from the question paper itself. The first one is sin theta plus cosec theta is given as 2. Sin theta plus cosec theta is given as 2 and you have to find out the value of sin raised to power tan theta plus cosec raised to power tan theta. What is that value of sin raised to power tan theta plus cosec raised to power tan theta? देखिएगा, sin theta plus cosec theta equals to 2. That's the information given to you. So if I solve this, sin theta plus 1 by cosec theta can be written as 1 by sin theta is equals to 2. If you take the LCM properly, it will become sin square theta plus 1 equals to 2 sin theta. क्वेश्चंस नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. कभी भी जितना बने ठीक है, लेकिन आपने उन क्वेश्चंस को सिंसियरली सीरियसली अटेम्प्ट किया वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर सीरियस हो तो बनेगा, फिर वो कब तक नहीं बनेगा. तो sin square theta plus 1 minus 2 sin theta equals to 0. In fact, it is becoming a square plus b square minus 2ab. If you just observe here, sin theta minus 1 whole square is equals to 0. तो बन रहा है ना, sin theta minus 1 whole square equals to 0. I can definitely say here, square is coming as 0. That means sin theta is nothing but equals to 1. So if sin theta is coming as 1, तो cosec theta is also equals to 1. sin theta 1 है तो cosec theta भी 1 हुआ. तो रिजल्ट अगर आपसे पूछा गया है तो 1 sin theta is 1, cosec theta is also equals to 1 and 1 raised to power 10 is 1, cosec raised to power 10 theta that is again 1, 1 plus 1 is simply 2. सिंपल सा सवाल था. क्वेश्चन इज tan of a plus b is equals to p, tan of a minus b is equals to q. That's the information given to you. That was the fourth question in fact, and the value of tan to a has been asked. Tan to a, and that options are there in terms of p and q. जो options हैं वो p और q के terms में हैं. If you remember, we have discussed some of the questions where elimination of theta or elimination of alpha was required. Tan to a is required. Tan of a plus b and tan of a minus b has been given to you. Tan to a is required, that means elimination of b. हमें जो डायरेक्टली सोचना चाहिए था यहाँ पर tan to a is required, बोले सर हो जाएगा, कैसे होगा देखिएगा. You can definitely write it a plus b plus a minus b. a plus b plus a minus b लिख सकते हैं, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है ना. That will be tan to a. So simple formula is there, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इट्स नॉट ट्रिकी फॉर यू बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. सो फर्स्ट टाइम के लिए ट्रिकी होता है, नेक्स्ट टाइम में तो क्लिक करना चाहिए वो, ठीक है ना. सो इट विल बी p प्लस q अपॉन 1 माइनस pq. सीधे सीधी सी बात है, ऑप्शन टिक करना था आपको. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन. द सिक्स्थ वन इज root 3 cosec 20 degree minus sec 20 degree is required. The value of this root 3 cosec 20 minus sec 20 degree. Some options are there, 2, 1, 4, minus 4. देखिएगा, it is root 3 divided by sin 20 minus of sec 20 can be written as 1 by cos 20. लिख सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट किया.
इफ यू टेक द एलसीएम, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ठीक, बोले सर अब क्या किया जाए? बोले इतना तो हमने भी किया था, लेकिन इसके बाद आगे बात बनी नहीं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उतना तक ठीक है। यहाँ पर आपने देखिएगा √3 cos 20 माइनस साइन 20 इज देयर, सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2। अच्छा, साइन 20 cos 20 है, इसको भी ऑब्जर्व करते हुए 2 साइन है cos है, दैट इज साइन 2 है, ये तो हम जानते हैं। तो साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री, अगेन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2 इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया। सो इट इज बिकमिंग व्हाट? बोले सर ऐसा क्यों किया आपने? देखो √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, इफ यू ऑब्जर्व हियर ये बन रहा है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री इज 1/2। थोड़ा सा ही ध्यान से अगर आप देखें तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज बिकमिंग साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, साइन ए cos b माइनस cos a sin b। चेक कर लीजिए, राइट। एंड दिस 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, 2 sin a cos a is becoming sin 2a sin 40 डिग्री। मैं क्वेश्चन पेपर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका कंफर्ट लेवल बढ़े रिलेटेड विद द ट्रिगो। sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये sin 40 डिग्री बन रहा है। sin 40 डिग्री कैंसिल होता है, 2 will go there in the numerator, result is 4। so √3 cosec 20 minus sec 20, sin cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि क्या करना चाहिए। √3 cos 20 माइनस sin 20, अच्छा sin 20 cos 20 हिंट दे रहा है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दैट 2 sin a cos a will become sin 2a, और ये √3 cos 20 माइनस साइन 20 को ऑब्जर्व करते हुए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। सो दैट ये क्यों किया, क्यों सोचा? सो दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो दैट इट विल बिकम अ फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 more simple questions। द वैल्यू ऑफ विच इज अ डायरेक्ट वन इन फैक्ट, जो कि गलत तो नहीं होना चाहिए था, साइन पाई प्लस थीटा इंटू साइन पाई माइनस थीटा into cosec square theta। so sin pi plus theta into sin pi minus theta into cosec square theta, it is nothing but sin a plus b into sin a minus b। that's a direct result, that's a direct formula available to you। sin a plus b into sin a minus b is nothing but sin square a minus sin square b। ठीक है, so इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? sin square a minus sin square b into cosec square theta, राइट। बोले सर साइन स्क्वायर पाई क्यों? साइन पाई कैलकुलेट नहीं कर सकते? इन द वेरी फर्स्ट सेकंड क्लासेस यू हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पाई की वैल्यू साइन 180 डिग्री, 90 प्लस 90 कर लीजिए, 180 प्लस 0 करिए। अभी थोड़े से समय में आप कर्व स्केचिंग देखेंगे। साइन थीटा इज बिकमिंग 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई। साइन थीटा कब 0 होता है? थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई, minus pi minus 2 pi, always it is 0, so sin pi is nothing but 0, so it is becoming 0, minus of sin square theta cosec square theta। so minus of sin square theta cosec square theta is simply minus of 1। I think इससे आसान सवाल आपको कैसे मिलेगा ना? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, sin a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square b। अब बताइए इसमें क्या खास बात है ना? One more direct question was there।
In fact, if you remember, that was a question, 10th question here. Cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15, and cos 16 pi by 15. Right? If you observe here, angles 2 pi by 15, 4 pi by 15, 8 pi by 15, 16 pi by 15. Angles are coming in the multiple of 2 along with cosines. So there is a direct shortcut available with us that we have discussed in detail. In fact, we can write the result directly. How can we write the result directly? That is nothing but 4 terms are there. It will be 2 raised to power 4. Always you have to multiply and divide by the least angle of that sine of least angle. That will be 2 raised to power 4. Sine of 2 pi by 15. And in the numerator it will become, what it will become? Anybody? Huh? 16 into 2 pi, it will become 32 pi by 15. Right? We have discussed that. We have discussed 2-3 questions and then we have generalized the formula. Just अगर pages आप देखेंगे, you will be getting that and in the शायद previous class में discuss किया होगा वो. तो साइन बोले सर ये solve नहीं हो रहा. 32 pi by 15 options are 0, 1, -1, 1 by 8. As far as sin 32 pi by 15 and sin 2 pi by 15 is concerned, थोड़ा सा चेक तो हम कर सकते हैं ना कि sin 32 pi by 15 एंगल को कन्वर्ट करना सीखा है हमने. इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? टू पाई 32, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15. चेक करिए, 32 पाई बाय 15 इज देयर और ये एंगल डिनोमिनेटर में भी ऑब्जर्व करो तो sin 2 पाई बाय 15 इज देयर. तो 32 पाई बाय 15 कैन बी रिटर्न एज 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15. एलसीएम लोगे तो 30 पाई प्लस 2 पाई 32 पाई डिवाइड बाय 15 बात बनती है. तो sin 32 पाई बाय 15 is equals to sin of 2 pi plus 2 pi by 15. 2 pi plus theta will become the same angle. 2 pi by 15 कितना एंगल है by the way? 360 by एक्यूट एंगल है. कौन सा एंगल है? 2 pi by 15, 360 by 15. Clearly that's going to be an acute angle, so it is nothing sin 2 pi by 15. ये कैंसिल होता है. बट ऑप्शन इज कमिंग एज व्हाट? 1 by 8 नहीं आ रहा है. इट इज 1 by 16. इट इज 1 by 16. देख लीजिए ना, दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. The fifth question was, in a triangle ABC, जहाँ लिखता है a plus b plus c is equals to pi. In a triangle ABC, sin A minus cos B is equals to cos C. And information which has been asked is, then the angle B is. In a triangle ABC, sin A minus cos B is equals to cos C and angle B पूछा गया है. What do you suggest? क्या करना चाहिए? सीधी सी बात जो मुझे समझ में आती है, समझ साइन ए माइनस कॉस बी, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो अवेलेबल है नहीं, और नहीं है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको लिख दिया जाए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी. साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी. साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी टू कॉस बी प्लस सी बाई 2 cos b minus c by 2. फॉर्मूला डायरेक्ट है. ठीक. एंगल b पूछा गया है यहां पर. a plus b plus c is equals to pi. यूज करें जरा इसका. b plus c can be written as pi minus a. b plus c को लिख सकते हैं अपन pi minus a. pi minus a लिखते हो तो इट विल बिकम pi by 2 minus a by 2. ठीक है ना. b plus c by 2 that will be equals to pi by 2 minus of a by 2. और दोस्तों cos 90 minus theta,
साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके, तो ये साइन पाई बाय 2 बन रहा है। साइन ए कैन बी रिटन एज 2 साइन ए बाय 2 cos a by 2 is equals to 2 cos b plus c by 2 cos b minus c by 2। जहां तक की बात करें पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो cos b plus c by 2 इज बिकमिंग sin a by 2। मेरी sin a by 2 यहां पर कैंसिल होता है, ठीक है ना। बोले सर इसमें आगे क्या करेंगे, cos थीटा इज कमिंग इज इक्वल टू cos अल्फा। फर्दर आप पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखना भी सीख लेंगे, लेकिन अभी क्या करें बोले सर। यस एनीबॉडी? cos a को एक बार अगर हम फिर से a को अगर हम b प्लस सी बाई 2 के टर्म में ले आए, a को अगर हम लिख देते हैं पाई माइनस ऑफ b प्लस सी, a को फिर से लिखें, हो सकता है इससे भी कुछ छोटा हम देख लें, cos a बाई 2 माइनस ऑफ cos b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, दैट विल बिकम cos a को लिखा हमने पाई माइनस ऑफ b प्लस सी बाई 2 माइनस ऑफ cos b माइनस सी बाई 2। उससे तो उलझ जाएगा मामला, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा दैट विल बिकम साइन थीटा। इसको अगर मैं यहीं पर सॉल्व करूं, cos a बाई 2 इज इक्वल टू cos b माइनस सी बाई 2। इफ आई जस्ट राइट हियर a बाई 2, एक्चुअल में एक रिजल्ट होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज करता हूँ, सो चेक करिएगा इससे कुछ रिजल्ट आता है क्या, जस्ट देखो जरा, नहीं तो कुछ दूसरा तरीका निकालते हैं। सो इट इज cos a by 2 is equals to cos b minus c by 2, and we have directly equated the angles a by 2 is equals to b minus c by 2, and finally we have replaced a by pi minus of b plus c is equals to b minus c। so what I am getting here, c cancel हो रहा है और 2b is equals to pi और b is equals to pi by b is coming as pi by 2, so angle b is pi by 2, ऑप्शन में है angle b pi by 2 is there, बात बन जाती है, ठीक है। The question is a plus c is equals to b, और वैल्यू पूछी गई है इसमें 10a plus 10 है 10b 10c। a plus c is equals to angle b और 10 है 10b 10c की वैल्यू पूछी गई है। some 4 options are been given to you, so a plus c is equals to b। टेंजेंट के टर्म्स में ऑप्शंस भी उसी टर्म में, और जो क्वेश्चन है वो भी 10 है 10b 10c है, तो 10 ऑफ a plus c is equals to 10b, टेकिंग टेंजेंट्स बोथ साइड्स, दोनों साइड टेंजेंट्स वाला एंगल लिया, 10 थीटा लिया हमने दोनों साइड एंगल, ठीक है ना। ऑप्शंस भी उसी के टर्म्स में, तो उसी डायरेक्शन में सोचना होगा। अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखते हैं जरा। 10a प्लस 10b फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस 10 है 10b, ठीक। बोले सर क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आसान था आप सोचिएगा, जब आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बेस्ड ऑन ट्राइंगल सॉल्व करी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत थी। तो जस्ट ऑब्जर्व, पूछा गया आपसे 10 है 10b 10c, तो 10 है 10b 10c इज नथिंग बट 10b माइनस ऑफ 10a माइनस ऑफ 10c। ऑप्शन इज देयर, टिक करना है आपको बस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/2
tan phi is equals to 1/3 और आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अगर ऑब्जर्व करते हुए आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो दिमाग में आएगा ये आना चाहिए, दैट इज अबाउट tan थीटा प्लस फाई। जरूर दिमाग में आता है tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक, दानिश भाई पढ़ाई चालू है? नहीं चालू है। कब से करने का आपने को देखो जरा। इफ यू टेक द एलसीएम हियर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/6 upon, if you take the LCM in the denominator also, 6 minus again 5/6। कितना सोचना पड़ा आपको? कुछ नहीं। tan थीटा प्लस फाई इज कमिंग एज 1। अब tan थीटा प्लस फाई इज कमिंग एज 1 तो थीटा प्लस फाई में कहाँ टेंशन होगा आपको? इज नथिंग बट π/4। अब इससे आसान सवाल कहाँ ढूंढोगे आप और कैसे मिलेगा? बताओ। इससे जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, थीटा प्लस फाई पूछा है तो हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई tan थीटा प्लस फाई देयर। वही करना होगा हमें। एक सेकेंड पहले देख लीजिए, लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वन 15th क्वेश्चन इज देयर इन विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू यू x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। पहले समझ लीजिए, आई विल गिव यू टाइम। x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा गया है sec अल्फा cosec अल्फा आर द रूट्स ऑफ दैट। So sec alpha, cosec alpha are the roots of that, and जो options हैं, those options are that there in terms of a and b. That means you have to eliminate alpha. वो alpha eliminate करना है आपको। Sec alpha, cosec alpha are the roots of that quadratic equation. Already we have discussed. Two roots are there, two relations are there, sum of root as well as product of roots. Sec alpha plus cosec alpha minus of b by a, that will be minus of minus a, which is a. Right, and the second is what? Sec alpha cosec alpha product of roots is equals to b. The result we want in terms of a and b, या result we want in terms of independent of alpha. Result में alpha appear नहीं होना चाहिए। So क्या किया जाए? Sec alpha plus cosec alpha, इसको हम जरा कर लें in terms of sin cos। तो 1/cos alpha plus 1/sin alpha, and if I take the LCM, sin alpha plus cos alpha divided by sin alpha cos alpha is equals to a, और 1/cos alpha sin alpha is equals to b। ठीक, sec alpha cosec alpha को sin cos में लिया है, कुछ खास काम नहीं। दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से देखते हैं अपन, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/b। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 1/b। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज नथिंग बट a/b। रिजल्ट तो मेरा इन टर्म्स ऑफ a एंड b है, विच इज फ्री फ्रॉम अल्फा। अब कैसे उसको क्या करना चाहिए, बात बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू a/b, एंड ऑन स्क्वेयरिंग ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड मेनी इक्वेशन विच आर ट्रिकी इक्वेशन, तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया था, एग्जाम में बना था सवाल ये। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, राइट। और साइन अल्फा कॉस अल्फा which is 1/b, please place that value here. You are going to get a result that is free from alpha. अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन मैच कर लीजिए। क्यों नहीं बनना चाहिए था? किया क्या आपने? सेक अल्फा कॉसेक अल्फा गिवन टू यू एज द रूट, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की गई है।
ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन कॉस में कन्वर्ट किया और सॉल्व किया। 19th question was cosec theta minus cot theta has been given as p, cosec theta minus cot theta equals to p, और आपसे पूछा गया था cosec theta is what in terms of p, so cosec theta minus cot theta equals to p। क्या सजेस्ट करते हो आप? ऑलरेडी कर चुके थे एक सवाल इसी टाइप का, एलिमेंट्री क्वेश्चन, इट इज देयर इन क्लास 10th बुक ऑल्सो। cosec theta minus cot theta equals to p and cosec theta is पूछा गया आपसे। बहुत ज्यादा नहीं सोचिए। 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta, you very well know that, so cosec square theta minus cot square theta is equals to 1, right? A square minus b square, a minus b, a plus b, is equals to 1, right? Cosec theta minus cot theta already there in the question itself p, तो cosec theta minus cot theta की वैल्यू p रख दीजिए, you will be getting cosec theta plus cot theta is equals to 1 by p। दोस्तों अगर cosec theta minus cot theta अवेलेबल है आपको और cosec theta plus cot theta अवेलेबल है और आपको cosec theta पूछा गया है, तो क्या करना है आपको? सिंपली एड दीज टू। अब इससे आसान सवाल कैसे मिलेगा आपको? ऑन एडिंग 1 and 2, टू cosec theta is equals to p plus 1 by p, so cosec theta is twice of p plus 1 by p, है ना? इनफैक्ट यू कैन फाइंड आउट एनी एंगल। cosec theta आपने निकाल लिया इजीली, cot theta निकाल सकते हो, साइन कुछ भी, तो cosec theta आएगा तो सभी कुछ तो आ जाएगा। लुक फॉर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, cot square theta plus 1 अपॉन cot square theta minus 1, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोले सर 1 plus cot square theta cosec square theta, जो ऑप्शन है वो sin 2 theta, cos 2 theta, cosec 2 theta, sec 2 theta के टर्म्स में, हमने इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो इसे लिखा जा सकता है 1 plus tan square theta on 1 minus tan square theta, ठीक है ना? कुछ बड़ी बात नहीं करी हमने, cot थीटा को 1 by tan थीटा ही लिखा है, इतना ही किया है। cot square theta plus 1 upon cot square theta minus 1, cot square theta is 1 by tan square theta, LCM लिया, tan square theta कैंसिल हुआ। फॉर्मूले को अगर ध्यान से कहीं समझ में आया आपको, तो cos 2 theta, that formula is there in terms of tan theta, cos 2 theta is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको, it is 1 by cos 2 theta which is sec 2 theta, ठीक? जैसा ऑप्शन टिक करना था। और डायरेक्ट एक और सवाल देखिए आप, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24, दैट वाज 1 minus tan square 15 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 15 डिग्री। आप लोगों ने कहा सर हमने फॉर्मूले तैयार कर लिए, फॉर्मूले तैयार कर लिए तो फिर बचा क्या है इसमें? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is nothing but cos 2 theta, which is nothing but cos 2 into 15 डिग्री which is cos 30 डिग्री। क्या वैल्यू बताना की आवश्यकता है कि आपको cos 30 डिग्री? अरे बता दिया आपने, चल ठीक है। These two results डायरेक्ट है ना, कितना सिंपल से सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना? Look for 31, it is 8 sin x by 8 cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8,
इसकी वैल्यू पूछी गई इज इक्वल टू सम ऑप्शंस आर देयर sin x cos x 8 sin x 8 cos x. दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू. ध्यान से अगर देखें आप sin x by 8 cos x by 8 डायरेक्टली आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चंस टुडे. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें. ऑल द टर्म्स आर देयर इन मल्टीप्लिकेशन. 4 into 2 sin x by 8 cos x by 8 cos x by 4 cos x by 2. टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन में अरेंज इसलिए किया सो दैट इट इज बिकमिंग 2 sin a cos a which is becoming sin 2a. So if it is becoming sin 2a 2 sin a cos a which is sin 2a, तो sin 2a में 2 sin x by 8 cos x by 8 is becoming क्या बनेगा x by 4. राइट. नाउ sin x by 4 cos x by 4 फिर से 2 sin a cos a आपके दिमाग में आना चाहिए. ऑलरेडी ये sin x by 8 cos x by 8 को ऑब्जर्व करते हुए आपने 2 sin a cos a बनाया था. तो इसे लिखा जा सकता है 2 into 2 sin x by 4 cos x by 4 cos x by 2. So it is twice of 2 sin a cos a that is sin 2a. It is what? Sin x by 2. Right? कर क्या रहे हैं हम? केवल मात्र इतनी से एक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं. sin 2a is equals to 2 sin a cos a बस. और 2 sin x by 2 cos x by 2 again 2 sin a cos a is becoming sin 2a sin x. ठीक. Look for question number 32 in a triangle ABC. Cosec A sin B cos C प्लस cos B sin C एन इज इक्वल्स टू पूछा गया आपको. 2 स्टेप्स का सवाल है कुल मिला के. sin A cos B प्लस cos A sin B. डायरेक्ट रिजल्ट डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर. cosec A इंटू इसके लिखा जा सकता है साइन ऑफ B प्लस सी. साइन ए cos B प्लस cos A sin B. कुछ भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं. और B प्लस सी दैट B प्लस सी इज नथिंग बट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. B प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा. तो cosec A इंटू साइन है. सिंपली 1. ठीक है ना. वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर. साइन 160 डिग्री 163 डिग्री कॉस 347 डिग्री प्लस साइन 73 डिग्री साइन 167 डिग्री. और इसकी वैल्यू पूछी गई थी आपसे 0 1/2 1 और नन ऑफ दीज कुछ ऐसे ऑप्शंस थे. 160 डिग्री 163 डिग्री cos 347 डिग्री प्लस साइन 73 डिग्री एंड साइन 167 डिग्री. क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अरेंजमेंट. अगर इस 163 को देखें अपन, इस 163 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हम सोचते कि क्या क्या कर सकते हैं. ये 180 माइनस 17 बन रहा है ये. तो ये साइन 17 डिग्री हो जाएगा. अच्छा कॉस ये 360 माइनस 20 360 माइनस 13 तो ये बन जाएगा आपका cos 13 डिग्री साइन 17 डिग्री cos 13 डिग्री. इधर देखिए साइन 73 डिग्री. अब साइन 70 को 90 माइनस 17 के लिख सकते हैं और ये 167 है. बन रही है बात यार, देख लो. साइन थोड़ी सी उठापटक जरूर कर सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं करेंगे. 180 माइनस 17 कॉस 360 माइनस 13
प्लस साइन 90 माइनस 17 साइन 180 माइनस 13 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 17 डिग्री, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा। और फिर थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर हम, तो इट इज बिकमिंग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी which is sin 30 degree is 1/2 ऑप्शन है। ठीक है, 26 आप लोगों ने पूछा था, x is an angle from 0 to pi, 0 to pi, that means first quadrant and second quadrant. Cos x plus sin x is given as half. Cos x plus sin x equals to half. And what is tan x? ये पूछा गया आपको. Some options are given to you. Cos x plus sin x equals to half. क्या सजेस्ट करते हैं आप? Cos x plus sin x equals to half. If we go on squaring both sides, if we go on squaring both sides, so it will become cos square x plus sin square x, which is 1 plus 2 sin x cos x is equals to 1/4. So 2 sin x cos x sin 2x is equals to 1/4 minus of 1, which is minus 3/4. ठीक है, ये sin 2x आया, sin 2x की वैल्यू minus 3/4. आप कहीं इधर पूछा तो tan x गया, what is the value of tan x? तो tan x के लिए sin 2x अगर आपको known है, तो sin 2x पता है, तो there is a formula in terms of tan x for sin 2x, which is 2 tan x upon 1 plus tan square x. So हम ट्राई करते हैं उस डायरेक्शन में, 2 tan x upon 1 plus tan square x is equals to minus of 3/4. So 2 tan x upon 1 plus tan square x is equals to minus of 3/4. Now take the LCM. You are going to get a quadratic in terms of tan x. करिए जरा सॉल्व कीजिए. That will become 8 tan x is equals to minus 3 tan square x, or 3 tan square x plus 8 tan x plus 3 equals to 0. इसको जरा फैक्टराइज कीजिए. अच्छा, पूछा क्या गया आपसे? tan x पूछा गया. देखिए जरा ट्राई करें. तो हम चेक करेंगे फैक्टराइज हो रहा है क्या. 3 tan square x plus 8 tan x plus 3 equals to 0. तो tan x is minus b plus minus root over b square minus 4ac, 4 into 3 upon 2a. 64 minus 36 2 root 7. बढ़िया. Divided by 2 into 3, which is 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं. -4 plus minus root 7/3. ठीक है. So which option is correct? A option is not there. A option में तो 4 minus root 7/3
B option is correct. If you take minus sign common, so one of the option is minus 4 plus root 7 by 3 and the second option is minus 4 minus root 7 by 3. और जहाँ तक कि 10x की बात करें 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट. पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. वो ऑप्शन में यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज माइनस कॉमन लेने पर 4 प्लस रूट 7 बाई 2 विच इज देयर, रूट 7 बाई 3. ठीक है, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, cos x प्लस sin x इक्वल टू हाफ, स्क्वायरिंग किया, sin 2x इज माइनस 3 बाई 4, sin 2x इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, quadratic in terms of tan x, and we are getting the value of tan x. So one of the question was cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree and cos 179 degree. All these terms are there in multiplication. Cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree to cos 179 degree. कैसे सॉल्व करोगे? cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, cos 4 degree up to cos 179 degree. कहीं ना कहीं लगता है कि सर 179 को 180 माइनस 1 लिख सकते हैं, 180 माइनस 1 लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में अगर थोड़ा सा ही ध्यान से अगर आप सोचें, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 179 डिग्री तक जा रहा है ये, तो डेफिनेटली 90 डिग्री इज ऑल्सो देयर इन बिटवीन, और cos 90 इज 0 दैट वी आर अवेयर ऑफ. तो आपको कुछ नहीं, केवल आंसर पे टिक करना था 0, बस इतना ही था. cos 90 विच इज 0. ठीक है, देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो दैट cosec थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और आपसे एंगल पूछा गया था इन बिटवीन 0 to 360 डिग्री, तो cosec थीटा इक्वल्स टू माइनस 2, so cosec थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, तो इट इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन वेरी वेल डिसाइड द एंगल्स. कितना डायरेक्ट सवाल था, पॉइंट इज डायरेक्ट है पर बनना चाहिए ना. क्या क्या एंगल आएंगे, cosec थीटा माइनस 2, sin थीटा माइनस 1 बाई 2, 210 डिग्री, 180 प्लस थीटा नेगेटिव होगा 210 डिग्री, एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी 360 माइनस थीटा 330 डिग्री. डायरेक्ट क्वेश्चन. अब ऐसे सवाल छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे, ये सोचिए. Now we have to find out the angles cos pi by 8, sin pi by 8, tan pi by 8. Pi by 8 angle find out करना है. Pi by 4 is known to us. Cos pi by 4, sin pi by 4, tan pi by 4 is known to us. But we have to find out cos pi by 8, sin pi by 8 and tan pi by 8. ठीक है. Half angle formula is there. Pi by 4 is available. Pi by 4 तो available है आपके पास, चाहे cos pi by 4 तो that is okay, 1 by root 2. sin pi by 4 it is 1 by root 2, but we have to calculate pi by 8. तो हाफ एंगल फॉर्मूले की जब बात की जाए, pi by 8 मतलब उस pi by 4 का हाफ हो गया. That's why I am talking about the half angle formula. तो उसके लिए क्या किया सकता है, देखो cos 2a, that cos 2a is 2 cos square a minus 1. ठीक है, कोई खास बात नहीं. तो cos a can be written as 2 cos square a by 2 minus 1. ये भी ठीक है. एंगल pi by 4 is available to us, ये हमें known है cos pi by 4 which is nothing but 1 by root 2. मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos
इफ आई टेक द एंगल ए पाई बाय 4, एंगल ए को अगर पाई बाय 4 कंसिडर करता हूं तो 2 cos स्क्वायर a by 2 that will be what, pi by 8 minus 1 cos pi by 8 चाहते हैं और जरूर आएगा, that is 2 cos square pi by 8 is equals to 1 plus cos pi by 4 which is nothing but 1 plus 1 by root 2, or it is nothing but root 2 plus 1 by root 2. So cos square pi by 8 is equals to root 2 plus 1 upon 2 root 2, or cos pi by 8 can be written as plus minus cos square pi by 8 पता लग गया आपको, you want cos pi by 8 तो take the square root of that which is plus minus root over root 2 plus 1 upon 2 root 2. Now the point is plus minus, पहले समझ लीजिए ना, तो cos pi by 8 is equals to plus minus root over root 2 plus 1 upon 2 root 2. Which sign should we take, plus sign, minus sign, या दोनों में कुछ भी ले लिया जाए? तो pi by 8 एंगल देख लीजिए, it is angle in which quadrant? तो first quadrant का एंगल, in first quadrant all the angles remains positive, so only plus sign. Cos pi by 8 is equals to root over root 2 plus 1 upon 2 root 2. And likewise if you have to calculate sin pi by 8, तो sin pi by 8 कैलकुलेट करना तब भी दिक्कत नहीं है, cos 2a, अच्छा एक तो ये सीधी सी बात है कि cos थीटा अगर आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट sin थीटा. बोले सर कैसे? अरे cos स्क्वायर ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोई खास बात नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो cos स्क्वायर थीटा नहीं, cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 इक्वल्स टू 1. तो sin स्क्वायर पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 8. cos स्क्वायर पाई बाय 8 ऑलरेडी है आपके पास, रख दो वैल्यू एंड टेक द स्क्वायर रूट, एक तो ऐसे सीधे सीधे हो जाएगा. या फिर आप चाहें तो अगेन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला. समझ रहे हो? ठीक. सो sin पाई बाय 8 या ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos पाई बाय 4. ठीक है. cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 वैल्यू रखी आपने, angle in the first quadrant remains positive, you will be getting sin pi by 8. ठीक है. और sin थीटा cos थीटा अवेलेबल है तो you can directly find out tan थीटा, tan pi by 8 आ जाएगा आपका. उसके लिए भी आप हाफ एंगल का यूज कर सकते हैं, ठीक है. क्लियर है? Now we will be discussing some important angles. अभी जो हमने डिस्कस किया पाई बाय 8 एंगल जैसे डिस्कस किया तो हाफ एंगल फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया वो, ठीक है ना. इफ आई टू कैलकुलेट 15 डिग्री तो 15 डिग्री इट इज सिंपली a माइनस बी, 45 माइनस 30. इफ आई टू कैलकुलेट 75 डिग्री तो a प्लस बी से हो जाएगा. लाइकवाइज जहाँ a माइनस बी a प्लस बी के हैं तो वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज a माइनस बी साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी, सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास अवेलेबल. बट सम मोर एंगल्स आर देयर. Or how to calculate those angles? Like I have to calculate sin 18 degree, cos 18 degree. How can we calculate sin 18 degree, cos 18 degree? देखिएगा. और इस 18 डिग्री से will be calculating 72, 36 and 54. Will be calculating 18 degree, 36 degree, 54 degree and 72 degree. एक एंगल फाइंड आउट करेंगे हम और रिमेनिंग सारे बना लेंगे. देखो कैसे. थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री.
So if I write 5 theta, theta 18 डिग्री, मुझे 18 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, 5 theta, तो 5 theta will become 90 डिग्री, 5 theta 90 बन जाएगा, ठीक है। इसे लिखा जा सकता है 3 theta इज इक्वल टू 90 माइनस 2 theta, फाइव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और 2 थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक, दैट विल बिकम साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा is equals to sin 90 minus 2 theta cos 2 theta इनफैक्ट, है ना, cos 2 theta। अब सारी बातें अब मैं चूंकि sin क्यूब थीटा इज देयर, sin थीटा इज देयर, तो cos 2 theta को भी हमने लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। सो वी आर गेटिंग अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा के टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन आ गई। दैट क्यूबिक इक्वेशन इज फोर साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। You are getting a cubic equation in terms of sin theta. So cubic equation अगर sin theta के टर्म्स में आई तो cubic equation में एक रूट तो आपको जो रियल रूट होगा वो तो आपको हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना होगा। cubic equation को फाइंड आउट, cubic equation को सॉल्व करना है तो दैट इज थ्रू हिट एंड ट्रायल ओनली। सो हिट एंड ट्रायल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 और 4 5 और ये 2 और 3, तो sin theta इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट। अरे cubic equation में दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए, sin theta इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट, so I'll factorize that, उसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा, ठीक है ना। sin theta equals to 1 is one of the root is satisfying that ना, 4 minus 2 minus 3 plus 1 it is becoming 0, 5 minus 5 0 बन रहा है, तो sin theta equals to 1 is one of the root, तो sin theta minus 1 से डिवाइड करो तो you will be getting a सेकेंड डिग्री जिसके दो रूट्स आएंगे ना। sin theta minus 1 is one of the factor, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। बोले सर हमने तो ऐसा सीखा है साइन थीटा माइनस 1 से डिवाइड कर दें, वैसा कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक एंड दैट इज गोइंग टू बी द क्वाड्रेटिक। सो वन ऑफ द रूट ऑफ दैट इक्वेशन इज कमिंग एज साइन थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा अगर 1 हो गया, लेकिन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। बोले सर क्यों? होता है साइन थीटा तो 1, तो साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 है। थीटा कितना है? 18 है। थीटा 18 डिग्री पे थोड़े ना साइन 18 1 होगा, तो साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। हटाइए इसको। सो यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a रूट 420 20 मतलब हो गया 5 इंटू 4 2 रूट 5
So sin theta कौन सा एंगल लेना चाहिए? sin theta is coming as -1 plus minus √5/2. My question towards you, प्लस ले या माइनस ले या दोनों ले सकते हैं? नीचे 8 आएगा, सॉरी, -2 -b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. So yes, it is 2 into 4. It will be 4, right? 8 कहाँ हो गया? 2 कॉमन ले कैंसिल कर दिया, तो -1 प्लस माइनस √5/4 प्लस साइन और माइनस साइन या सर एनी साइन या दोनों साइन. 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता. -1 माइनस √5 तो नेगेटिव हो जाएगा. So we are getting the value of sin 18 degree is coming as √5 minus 1/4. अब इस एंगल के थ्रू हम sin 18, cos 18, 36, 54, 72 सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे. So sin 18 degree is equals to √5 minus 1/4. How we have calculated? This is the approach. क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. whenever you solve the trigonometric ratios and identity. यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा. आप कहने में कह सकते हैं कि सर हमने 3 थीटा कॉस थीटा ले लिया बोथ साइड्स. अप्रोच करने में तो बनेगा, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा. भाई 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो आप लिखो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा. सॉल्व करना है यार, किसी भी ढंग से करें, कोई दिक्कत नहीं है, में कोई परेशानी नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं है. अप्रोच क्लियर होना चाहिए, किया ठीक है ना. सो यस, sin 18 डिग्री वी हैव कैलकुलेटेड एज √5 minus 1/4. दैट इज द वैल्यू, √5 minus 1/4 sin 18 डिग्री. ठीक है ना. sin 18 डिग्री इज देयर, सो वी कैन कैलकुलेट cos 18 डिग्री. 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का यूज करते हुए यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट cos स्क्वायर 18 डिग्री. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, which is 1 minus sin square 18 degree, that is √5 minus 1/4 and whole square of that. डायरेक्ट लिखें चलेगा. It is 16 minus 6, which is 10 plus 2 √5 by 16, which is cos square 18. Cos 18 degree is plus minus, but 18 degree first quadrant का angle remains positive, so it is 5 plus √5 by 8. That is nothing but the value of cos 18 डिग्री. केवल एक sin 18 डिग्री की वैल्यू याद रखी जाना चाहिए, sin 18 डिग्री याद होना चाहिए. ठीक है, ये cos 18 डिग्री आ गया, उसकी हेल्प से चेक करिए, सेम रिजल्ट है, 5 plus √5 डिवाइड बाय 8. अब sin 18 cos 18 अवेलेबल है, तो ध्यान से देखिएगा. इफ आई हैव टू कैलकुलेट sin 18 डिग्री, so sin 18 degree is already there, it can be written as 90 minus 72 degree. 18 डिग्री को लिख सकते हो आप 90 minus 72, और sin 90 minus थीटा cos थीटा. तो समझ में आती है बात अपने को कि यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री इज फॉर cos 72 डिग्री ऑल्सो. जो sin 18 डिग्री की वैल्यू है वही cos 72 डिग्री की भी है, बिकॉज 18 डिग्री इज 90 माइनस 72 और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, और cos 18 डिग्री तो cos 18 डिग्री है, तो साइन 72 हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना. अब 18 डिग्री से 72 डिग्री आ गए, और 18 डिग्री से वी कैन कैलकुलेट 36 डिग्री ऑल्सो.
हाँ 36 डिग्री, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूलास, हाफ एंगल फॉर्मूलेस की जानकारी है हमें। ठीक है ना, या फिर आपको साइन स्क्वायर सभी कुछ तो पता है यार, क्या दिक्कत है। राइट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन 18 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 18 रूट 5 माइनस 1 ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस 6 cos 36 डिग्री आ गया, रूट 5 प्लस 1/4 राइट। और cos 36 डिग्री अगर आया है, यू विल बी कैलकुलेटिंग sin 36 डिग्री अगेन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोई खास बात नहीं है। और cos 36 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू sin 54 डिग्री ऑल्सो, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा विल बिकम द सेम। तो जो cos 36 डिग्री की वैल्यू वही sin 54 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, रूट 5 प्लस 1/4। और cos 36 डिग्री अगर अवेलेबल है तो sin 36 निकल आएगा यहां से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Just put the value and calculate। और sin 36 डिग्री की जो वैल्यू होगी cos 54 डिग्री की वैल्यू होगी। So with the help of one angle sin 18 degree we have calculate sin 18 degree cos 18 degree sin 72 degree cos 72 degree sin 36 degree cos 36 degree and sin 54 degree cos 54 degree। So we have calculated 18 degree 36 54 72 all these angles। बना लीजिए पूरा।